Assalamu alaikum and welcome to lecture 31st. Our topic is investment analysis and portfolio management. Let's have a look at outline. Today's outline includes recap of the previous lecture. Then we will discuss choosing a discount rate. Then we will discuss merger and acquisitions, and then venture capital. As you know, we have discussed CAPM and the elements of CAPM, in which the beta is the most important, how to calculate beta and what are the elements of beta, how it is measured, what is represented by beta. So we have discussed the financial risk and business risk, which is included in the systematic risk, and systematic risk represents beta. So then we have discussed if the company changes its financial risk, it means if the company changes its debt equity ratio or introduce a debt into its capital structure, then you have to calculate beta asset, and then from beta asset you have to calculate beta equity. That will represent gate beta, and then we will calculate cost of equity of a gate company to address the risk of change in financial risk. And for change in financial risk, there are two methods: adjusted present value method and risk adjusted WACC. We have discussed both methods in detail, and we have also discussed the procedures for calculation of risk adjusted WACC and adjusted present value. Today we will start choosing a discount rate, and this will be a concluding session regarding required rate of return and regarding investment analysis, how to analyze and what discount rate to be used in investment analysis topics. So discount rate for project appraisal. There are certain conditions. Number one is no changes in financial or business risk. When there is no change in the capital structure of the company and there is no change in the sector in which the company is operating, then there is no change in financial or business risk of the company. तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? Then current WACC may be used as a discount rate. This is the same thing which we have discussed during our discussion of WACC. Current WACC may be used as discount rate when there is no change in business risk or financial risk. Questions are likely to be focused on how the project is to be financed to keep the WACC constant. Cost of project and increase in earning equity will be given. Calculate revised market value by dividing increased earnings with WACC and compare with old market value to calculate NPV. यानी एक तो है आपके पास सिंपल क्वेश्चंस कि आपने ये प्रोजेक्ट है, इसको एवेल्युएट करना है यूजिंग करंट WACC व्हेन देयर इज नो चेंज इन बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क. तो आप उसका एवेल्युएशन कर लेंगे, उसका एनपीवी निकाल के आप बता देंगे कि आइदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल फॉर द इन्वेस्टर और नॉट. बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसमें आपने ये बताना होगा कि क्या कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए टू कीप द WACC कांस्टेंट. एंड कॉस्ट ऑफ, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट गिवन होंगे, इंक्रीज इन अर्निंग्स गिवन होगा, यानी कैश फ्लोज आपको गिवन होंगे, और कैश फ्लोज जब गिवन होंगे तो फिर आपको मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी होगी यूजिंग द डिस्काउंट रेट. और जब मार्केट वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आप बता देंगे कंपेयर करके ओल्ड मार्केट वैल्यू से कि आइदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट बाय डिस्काउंटिंग द प्रोजेक्ट एट दिस डिस्काउंट रेट. यानी अगर कंपनी अपना कैपिटल चेंज कर लेती है तो मार्केट वैल्यू में कितना इफेक्ट आ रहा है. तो इसमें क्या था
क्या फॉर्मूले वही हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अमाउंट ऑफ डेट किससे हम कैलकुलेट करते थे कि डेट डिवाइडेड बाय डी प्लस ई, दिस आर बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूज, कि डी रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड ई रिप्रेजेंट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय टोटल इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। तो इस रेशियो से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, तो आपके पास अमाउंट ऑफ डेट आएगी। इसके बाद क्या है, अमाउंट ऑफ इक्विटी, और उसके लिए आपको प्रोपोर्शन निकालना होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस एनपीवी, तो आपके पास अमाउंट ऑफ इक्विटी आ जाएगी। कैलकुलेट रिवाइज्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिवाइड बाय न्यू की कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिटरमिन रिवाइज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इस बेसिस पे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं आप नया प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक है बाय यूजिंग करंट वैक व्हेन देयर इज नो चेंज इन बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क। सेकंड ऑप्शन इज बिजनेस रिस्क चेंजेस, फाइनेंशियल रिस्क मे और मे नॉट चेंज। जब आपका बिजनेस चेंज हो रहा है तो उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू और रिस्क एडजस्टेड वैक। तो इन दोनों की कैलकुलेशंस हमने डिटेल देखी थी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, और उसमें हमने लिमिट किया था अपने आप को फाइनेंशियल रिस्क तक। लेकिन अगर आपका बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा हो फाइनेंशियल रिस्क इज मे और मे नॉट बी चेंजिंग, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू और रिस्क एडजस्टेड वैक के टेक्निक्स को यूज करेंगे और उसमें बीटा एसेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बीटा एसेट इज रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी। तो बीटा एसेट की बेसिस पे आप बिजनेस रिस्क को एवेलुएट कर सकते हैं कि बिजनेस रिस्क नई सेक्टर में या नए बिजनेस में कितना उसमें रिस्क है, क्योंकि बीटा एसेट इज रिप्रेजेंटिंग बिजनेस रिस्क ऑफ द कंपनी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। तो बीटा एसेट आप कैलकुलेट करके अपना रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वैक कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनको यूज कर सकते हैं इन एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एंड रिस्क एडजस्टेड वैक में। इफ द फाइनेंशियल रिस्क चेंजेस एंड बिजनेस रिस्क रिमेन्स द सेम, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो और बिजनेस रिस्क रिमेन्स द सेम। तो उसमें जब फाइनेंशियल रिस्क आपका चेंज हो रहा हो तो उसमें ट्रेडिशनल थ्योरी अप्लाई हो सकती है, जो कि हमने उस वक्त डिस्कस की थी जब हम वैक की डिस्कशन कर रहे थे कि वैक में जब फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो तो या तो आपका ट्रेडिशनल थ्योरी अप्लाई होगी या फिर एमएम थ्योरी अप्लाई होगी। तो ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कह रही थी, सिंस ट्रेडिशनल थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी फार्मूला इंक्रीज और डिक्रीज इन केई और केडी मे विल बी प्रोवाइडेड ड्यू टू गियरिंग चेंजेस। तो फाइनेंशियल ट्रेडिशनल थ्योरी ने क्या कहा था, ट्रेडिशनल थ्योरी ने आपको यह बताया था कि देयर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ गियरिंग, कि अगर इस लेवल तक आप आते हैं तो आपको वैक मिनिमाइज्ड और वैल्यू मैक्सिमाइज्ड हो जाएगी। तो उस वैल्यू के ऊपर जाते हैं तो फिर आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो आपके रिजल्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे और फिर दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बी फिजिबल। इसके बाद आपके सामने एक चार्ट आ रहा है कि चार्ट में आपको बताया हुआ है कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई अ बेंचमार्क विद द सेम बिजनेस रिस्क एज द प्रोजेक्ट, कि आपने बेंचमार्क डिसाइड करना है कि बिजनेस रिस्क आपका सेम रहे विद द सेम बिजनेस रिस्क एज द प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या है, एज द प्रोजेक्ट द सेम फाइनेंशियल रिस्क, यानी उसका गियरिंग लेवल है, उसका लेवरेज लेवल जो है, डेट इक्विटी रेशियो है, वो सेम है या नहीं है। अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है तो फिर आप अनगियर द बेंचमार्क यूजिंग द डेट इक्विटी रेशियो। तो बेंचमार्क को आपको चेंज करना होगा यूजिंग द डेट इक्विटी रेशियो विच इज न्यू डेट इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। और उसमें आपको याद होगा कि आपको बीटा एसेट डिटरमिन करना होगा, बीटा एसेट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको बीटा इक्विटी कैलकुलेट करना होगा जो कि विद होगा विद न्यू डेट इक्विटी रेशियो। और उसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, आर यू गिवन द प्रोजेक्ट डेट और डेट
कैपेसिटी इन रुपीज़। अगर आपको डेट की अमाउंट पता है और डेट कैपेसिटी की अमाउंट पता है तो फिर आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करनी है तो आपने उसकी कैलकुलेशंस में देखा था कि आप उसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साइड इफेक्ट्स और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड निकालेंगे और बेस केस एनपीवी में उसको ऐड कर देंगे। तो उसमें बेस केस एनपीवी आपको निकालना होगा यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी, यानी वैक ऑफ अनगेट कंपनी विच इज इक्वल टू KEU, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट कंपनी। बेस केस एनपीवी निकाल लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे साइड इफेक्ट्स को या टैक्स शील्ड को, जो अदर इफेक्ट्स हैं, यूजिंग प्री टैक्स KD और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो ये एपीवी का तरीका था। अगर एपीवी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्या करना हो, आर यू गिवन द प्रोजेक्ट डेट इक्विटी रेशियो। अगर आपको डेट इक्विटी रेशियो बताया गया है तो फिर आप रिस्क एडजस्टेड वैक की तरफ आएंगे। अगर डेट इक्विटी रेशियो आपको पता है तो फिर आप बीटा इक्विटी आप निकालेंगे और विद न्यू डेट इक्विटी रेशियो, और बीटा इक्विटी को यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग द कैपम फार्मूला, और उसकी बेस पे आप वैक अपना कैलकुलेट कर लेंगे विच विल बी कॉल्ड रिस्क एडजस्टेड वैक। और रिस्क एडजस्टेड वैक की बेस पे आप फाइंड द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एट द एडजस्टेड वैक। लेकिन अगर फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हो रहा तो फाइंड द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द बेंचमार्क्स वैक। तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना, जो आपका करंट वैक है उसके बेसिस पे आप नए प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये था डिस्काउंट रेट से रिलेटेड कि डिस्काउंट रेट आपको किस तरह डिटरमिन करना होगा और किस तरह यूज करना होगा इन योर प्रोजेक्ट अप्रेजल टेक्निक। नंबर 1 था कि देयर इज नो चेंज इन बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क, उसमें करंट वैक यूज होगा। और सेकंड ऑप्शन था कि अगर आपका बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है, आपका बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है तो उसमें एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की बात की थी कि आप उसमें बीटा को यूज करेंगे, बीटा एसेट निकालेंगे और बीटा एसेट को यूज कैपम में करेंगे। कैपम से फिर आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से फिर आप अपना वैक डिटरमिन कर लेंगे। और अगर फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा था तो इस डायग्राम में आपके पास सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है तो ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती थी कि देयर इज एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ गियरिंग, और उसके बाद फिर एपीवी या फिर आप रिस्क एडजस्टेड वैक को भी यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे फॉर एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इफ देयर इज चेंज इन फाइनेंशियल रिस्क। तो दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट द चूजिंग अ डिस्काउंट रेट, कि आपको डिस्काउंट रेट किस सिचुएशन में किस तरह एवेल्युएट करना है। नाउ वी विल स्टार्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिस्कशन। टू अप्रिशिएट ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, टू अंडरस्टैंड आर्गुमेंट्स फॉर अगेंस्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, और इसमें ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स क्या हो सकती हैं। अगर मर्जर एक्विजिशन हो रहा है तो फिर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज कंपनी क्या यूज कर सकती है टू अवॉइड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। टू डिस्कस द वैरायटी ऑफ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, क्योंकि जब आप मर्जर एक्विजिशन की तरफ जा रहे हैं तो आपको मेथड ऑफ फाइनेंसिंग भी पता होने चाहिए कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट suited for the merger or acquisition. And then we will discuss various defensive against takeovers, यानी कंपनी टेक ओवर करना चाह रही है दूसरी कंपनी को, तो दूसरी कंपनी क्या डिफेंसिव टैक्टिक्स अपना सकती है टू अवॉइड द टेक ओवर, एंड डिस्कस अदर मेथड ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉर डिस्कशन ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अभी आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है, एंड दिस डायग्राम्स रिप्रेजेंट द टोटल प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। उसमें सबसे पहले आर्गुमेंट्स आ रहे हैं फॉर एंड अगेंस्ट कि ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी के लिए बेहतर है या एक्सटर्नल ग्रोथ। इसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं कि इनसे क्या मुराद है। देन वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन, कि अगर एक्विजिशन कंपनी करती है तो कंपनी के लिए उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस। और साइनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस मर्जर्स एंड एक्विजिशन, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ साइनर्जी एंड विनर्स एंड लूजर्स आफ्टर द एक्विजिशन और मर्जर।
देन वी विल डिस्कस मैटर ऑफ फाइनेंसिंग, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल को डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच ऑप्शंस। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उसमें लोन स्टॉक है, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक है। और स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स में क्या आएगा कि डॉन रेड, सिटी कोड के क्या क्या कोड्स एप्लीकेबल है रिगार्डिंग मर्जर्स और एक्विजिशंस, टेक ओवर्स एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन एक्टिविटी, जो अगर किसी कंट्री में होती है वो हम उसको गो थ्रू कर लेंगे। फिर उसके बाद डिफेंसेस क्या हो सकते हैं, हॉस्टाइल बिड्स, डिफेंसेस बिफोर अ बिड इज मेड एंड डिफेंसेस आफ्टर अ बिड इज मेड। और उसके बाद पोस्ट मर्जर मॉनिटरिंग, क्योंकि मर्जर तक बात खत्म नहीं होती कि मर्ज हो जाती है तो उसमें मॉनिटरिंग का भी एलिमेंट आता है और दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और अगर मॉनिटरिंग वगैरह सब कुछ हो गई और बाद में जाके अगर डाइवेस्टमेंट की बात आती है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इस डेफिनेशंस को, रीजंस क्या हो सकते हैं, मैनेजमेंट बायआउट्स उसमें ऑप्शन है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट बायआउट्स और मैनेजमेंट बाय इन। तो इन टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे हम गो थ्रू कर लेंगे क्योंकि ये पार्ट है ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। देन वी विल डिस्कस कैपिटल रिकंस्ट्रक्शंस, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको रिकंस्ट्रक्ट क्या किया किस तरह किया जा सकता है, उसमें बैकग्राउंड को, उसके टाइप्स को और स्कीम को डिस्कस कर लेंगे और सप्लायर्स ऑफ कैपिटल को। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इसमें मर्जर एक्विजिशन में का पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस बिहाइंड एनी मर्जर और एक्विजिशन इज टू ग्रोथ, इज टू ग्रो, कि every investor wants to grow his wealth, his business, his operations, his identity, तो वो ग्रोथ चाहते हैं। तो जब ग्रोथ चाहते हैं तो वहां पे बात आती है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ हो या एक्सटर्नल ग्रोथ हो। If the strategy of a company is for long-term growth, then this come from either organic growth or external growth. Organic growth क्या होती है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें और उसमें नई प्लांट लगाएं, नया स्टाफ रखें, उसमें ज़्यादा लैंड खरीदें और नए प्रोजेक्ट के थ्रू आप उसको ग्रो करें। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट बाय द फर्म फाइनेंस बाय रिटेंशंस और न्यू डेट इक्विटी इज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है? बाइंग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स बाय एक्वायरिंग अनदर बिजनेस। एक्सटर्नल ग्रोथ ही होती है कि आपने दूसरी कंपनी इसी सेक्टर में ऑपरेट करनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने उस कंपनी को खरीद लिया, या फिर ये कि आपने उसके साथ मर्जर कर लिया, तो दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ, यानी एक्सटर्नल बिजनेस को आपने एक्वायर कर लिया या उसमें के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया, तो इस तरह आपकी ग्रोथ होगी। ऑर्गेनिक ग्रोथ ये होती है इंटरनल ग्रोथ, बाय यूजिंग इंटरनल फंड्स, नए प्रोजेक्ट लगाना, नया कैपिटल लगाना और अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज करना। तो दिस इज ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन, हमारा मेन फोकस है अबाउट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो हम उसी पे फोकस रखेंगे, उसमें एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 इज स्पीड, बिकॉज इन ऑर्गेनिक ग्रोथ देयर इज स्लो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ एलिमेंट, कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ करते हैं, अपने इंटरनल फंड्स को यूज करते हैं, उसमें it requires a lot of time regarding investment appraisals, investment appraisals और इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस को देखना, उनको एवेल्यूएट करना, सोर्सेज ऑफ फंड को हाईलाइट करना और फिर इन्वेस्ट करना, बिजनेस को रन करना, वो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। और जो एक्विजिशन है, एक रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर लेना, दैट इज अ स्पीडी प्रोसेस। ऑफन क्विकर, मोर इमीडिएट देन ऑर्गेनिक ग्रोथ। एंट्री कॉस्ट, if the cost of entering a new business is high, it might be better to acquire such a business as a going concern, क्योंकि बाज़ दफ़ा there are certain barriers और बैरियर कॉस्ट ज़्यादा होती है कि आप नई मार्केट में एंटर हो, आप रेगुलेटर से परमिशन लें, आप उसके लिए रेगुलेशंस को फॉलो करें, तो डेट इज़ अ लेंथी प्रोसेस और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इंकर हो जाती है। तो एक्विजिशन में आप फॉरन से एंटर हो जाते हैं इन अ न्यू इन्वायरमेंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस रन कर रहा है और वो एज ए गोइंग कंसर्न ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ उसको एक्वायर करना है और उसको रन करते रहना है। बैरियर्स टू एंट्री,
This may mean that acquisition is the only method of entry to a new area of business. कि एक कंपनी को आप एक्वायर करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड में, तो वहां पे जाके आप क्या करेंगे, सिंपल एक कंपनी को एक्वायर कर लेंगे तो आपकी वहां पे प्रेजेंस शो हो जाएगी. तो इसमें बैरियर्स को देखना होता है कि बैरियर्स क्या क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको मीट करना अलाउ करते हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट या नहीं करती, इन तमाम कुछ चीज़ों को देखना. इट इज कॉल्ड बैरियर्स टू एंट्री. रिस्क. Organic growth may be riskier than acquiring an existing business. Undervaluation, asset stripping is possible in an acquisition. यानी उसमें आप प्राइसेस को बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हाई या लो, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड वर्किंग कर सकते हैं कि एक ट्रेड डेट है तो उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए. तो उसमें प्राइसिंग का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे आपको काफ़ी अंडर वैल्यू होने के भी चांसेस होते हैं. साइनर्जी, इसका लास्ट बेनिफिट है साइनर्जी, जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे. साइनर्जी का यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं. साइनर्जी मीन्स के जो एक्विजिशन करने जा रहे हैं, जो नई कंपनी एक्वायर करना जा रहे हैं आप, वो आपके ऑपरेशन से कितना रेलेवेंट है और कितना आपके ऑपरेशंस को बेनिफिट हो सकता है थ्रू एक्वायरिंग न्यू कंपनी. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन. इट इंक्लूड्स एंट्री कॉस्ट एंड शेयर होल्डर वेल्थ. एंट्री कॉस्ट में जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रीक्वेंटली प्रीमियम पेड ओवर द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस आर कंसीडरेबल, क्योंकि एंट्री कॉस्ट इसमें भी जैसे आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, नए इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, वहां पे एंट्री बैरियर्स के साथ साथ उसकी एंट्री कॉस्ट भी होंगी और वो बाज दफा काफी ज्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू other cost. Or shareholder wealth, if the bidder pays too high a price for the victim, this will reduce the bidding company's shareholder wealth. क्योंकि अगर एक रनिंग बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको काफी हाई ह्यूज अमाउंट्स पे करनी होगी टू एक्वायर न्यू बिजनेस, तो उससे आपके करंट शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिक्रीज होगी. नाउ वी विल डिस्कस साइनर्जी. The most compelling argument for a merger or acquisition is normally the creation of synergy. The value of the two entities combined is greater than the value of the two entities separately. क्योंकि एक कंपनी अगर सेम सेक्टर में और सेम जगह ऑपरेशंस में ऑपरेट कर रही है तो उससे आपकी अगर साइनर्जी हो सकती है, यानी आपके जो प्रोसेसेस हैं और उसके प्रोसेसेस सेम है और तो उसके प्रोसेसेस को यूज करके आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं. तो देयर इज अ साइनर्जी एलिमेंट तो आपके जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगी. और अगर इंडिविजुअल कंपनीज देखी जाए तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू साइनर्जी इफेक्ट. तो साइनर्जी का इफेक्ट आपको दिखा रहे हैं. अगर 2+2 है उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज, यानी इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ बोथ कंपनीज इज इक्वल टू 2. अगर साइनर्जी करते हैं तो हो सकता है 5 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, क्योंकि साइनर्जी के इफेक्ट्स काफी ज्यादा होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं. नाउ ऑपरेटिंग साइनर्जी अराइजेस फ्रॉम साइनर्जी अराइज कहां से होती है? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर. आपने कोई मर्ज कर लिया या एक्वायर कर ली कंपनी तो उसकी वजह से आपके जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी. कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट या आपके सेल्स वॉल्यूम ज्यादा हो गया या सेल प्राइस ज्यादा हो गई तो वहां से आपकी इम्प्रूव ऑपरेटिंग साइनर्जी आ गई. इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर, इंक्रीज मार्केट शेयर, क्योंकि आपकी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर था और जो जिस कंपनी के साथ आपने मर्ज किया या एक्वायर किया उसका भी एग्जिस्टिंग शेयर था, तो आपकी जो रिकग्निशन इन द मार्केट बिकम्स ग्रेटर. एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, cash rich companies. Financial synergy arises from diversification, reduces the risk of the company's cash flow, hence affecting the WACC of the company. क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है तो उसकी वजह से WACC आपका जो रिस्क है आपका वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा और कुछ हद तक एलिमिनेट हो जाएगा. Reduced viability and return might improve the company's credit rating, increasing the debt capacity. Horizontal merger, purchase of
horizontal merger, what is horizontal merger? It is a purchase of competitors. And vertical mergers, purchase of suppliers and customers. So these are two important terminologies which we have discussed here. Note इसमें एक है, mergers are within the same industry. Diversification is used to diversify outside the industry or to acquire a competitor. तो mergers और जो आपकी एक्विजिशन है उसमें फ़र्क भी हो सकता है. मर्ज आप नॉर्मली जो कंपनीज करती हैं वो उस इंडस्ट्री में करती हैं जो उनके पैरेलल और सेम हो, और जो एक्विजिशन करती हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकती हैं, यानी एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेट कर रही है और सर्विस इंडस्ट्री में भी किसी कंपनी को एक्वायर कर सकती हैं. तो वहाँ से डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है और उसका फ़ायदा कंपनी को क्या होता है, उसका रिस्क एलिमिनेट हो जाता है और ग्रेटर उसमें प्रोडक्ट्स कंपनी को अवेलेबल हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिनर्जी को डिस्कस कर लिया कि वो किन एलिमेंट्स की वजह से अराइज होती है. फाइनेंशियल सिनर्जी को डिस्कस किया कि वो क्यों अराइज होती है, और हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर को भी हमने उसके एलिमेंट्स को देख लिया कि हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या आता है कि हॉरिजॉन्टल मर्जर में कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर परचेज कर रहे हैं, वर्टिकल मर्जर में आप सप्लायर्स और कस्टमर्स को परचेज कर रहे हैं. तो ये टर्मिनोलॉजीज थी जो कि इस टॉपिक में इंक्लूड होती हैं. Now, what are the sources of synergy? Number one, economies of scale, bulk buying discount. Economies of vertical integration, purchasing, customer, supplier. Or economies of investment, use of common research and development plant, etc. And monopoly power, possible prices increases. Reduction in variability of cash flows, more stable cash flows, might reduce borrowing cost and bankruptcy risk. ये वो सोर्सेज हैं जहां से सिनर्जी आपकी अराइज होती है. इसके बाद सरप्लस एसेट्स सोल्ड ऑफ एंड प्रोसीड इन्वेस्टेड इन न्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपने जब मर्ज किया किसी ऑपरेशन के साथ तो वहां पे जो एक्स्ट्रा एसेट्स हैं वो आप सेल ऑफ कर देंगे. सेल ऑफ करने से आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी और वो न्यू प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन टैक्स लॉसेस, और जब टैक्स लॉसेस आपको एक सिनर्जी करके या मर्ज करके आप मिल रहे हैं, इट मींस इट रिड्यूस टैक्स बिल्स बाय एक्वायरिंग कंपनी विद टैक्स लॉसेस. अगर किसी की कंपनी के टैक्स लॉसेस हैं और उस कंपनी को आप एक्वायर कर लेते हैं तो उससे आपको अपना टैक्स बेनिफिट अराइज हो जाता है क्योंकि आपका अपना टैक्स कम हो जाएगा. टैक्स शील्ड, एक्वायरिंग कंपनी विद लो गियरिंग in order to gear up and gain the benefit of the tax shield on debt interest. अगर दूसरी कंपनी उसे लोन लिया हुआ है तो वहां से जो इंटरेस्ट कॉस्ट राइज हो रही है उस पर आप टैक्स बेनिफिट को यूज कर सकते हैं फॉर एज अ टैक्स सेविंग पर्पसेस. एंड कैश काउस, बाइंग कंपनी विद सरप्लस कैश टू री इन्वेस्ट प्रॉफिटेबली. तो दीज आर द एलिमेंट्स विच रोजेस सिनर्जी इम्पैक्ट्स. ये वो एलिमेंट्स हैं जहां से आपके सिनर्जी इम्पैक्ट्स अराइज होते हैं. नाउ देयर आर टू आर्गुमेंट्स अबाउट क्रिएशन ऑफ सिनर्जी विच आर नॉट वैलिड. नंबर वन, रिस्क रिडक्शन, एंड नंबर टू, बूटस्ट्रैपिंग. ये क्यों वैलिड नहीं है इसको डिस्कस कर लेते हैं. कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बाय अ कंपनी विल ओनली रिड्यूस अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि हम कैपा में डिस्कस कर चुके थे जब हम बीटा की बात कर रहे थे कि थ्रू डाइवर्सिफिकेशन आप अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं. इफ द शेयर होल्डर्स आर ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड, दे हैव नो अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड आर ओनली कंसर्न विद द सिस्टमैटिक रिस्क विच कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे. क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब हम कैपम को डिस्कस कर रहे थे कि जो बीटा है डेट ओनली रिफ्लेक्ट्स सिस्टमैटिक रिस्क, और बीटा के थ्रू आप सिस्टमैटिक रिस्क को हैंडल करते हैं, उसको मेजर करते हैं, और जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है. नाउ बूटस्ट्रैपिंग, समटाइम्स अर्ज दैट इफ अ कंपनी विद हाई PE ratio buys a company with a low PE ratio, then the higher ratio
will be applied to the combined entity, creating an immediate price gain. In an efficient market, however, a weighted average PE ratio would be applied. नॉर्मली ये होता है कि एक कंपनी है जिसका पी रेशो ज्यादा है, बहुत हाई है, और एक कंपनी है जिसको वो एक्वायर करना चाहती है उसका पी रेशो कम है. तो जब वो एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है, तो उसके बाद जो जिस कंपनी का पी रेशो कम था उसका भी कंबाइन हो गए इंक्रीज हो जाता है, तो वहां से शेयर प्राइस गेन वो अवेल कर लेते हैं. लेकिन अगर एफिशिएंट मार्केट हो तो वहां पे वेटेड एवरेज किया जाता है और वेट करके फिर नया पीई कैलकुलेट की जाती है. तो ये वो दो आर्गुमेंट्स है जो कि सिनर्जी के लिए वैलिड नहीं है. नाउ वी विल डिस्कस विनर एंड लूजर्स. एम्पेरिकल एविडेंस इंडिकेट्स द ओनली कंसिस्टेंट पार्टीज टू गेन इन मर्जर एक्टिविटीज आर द विक्टिम शेयर होल्डर्स. वो क्यों? बिडिंग कंपनी शेयर होल्डर्स ऑफन लूज आउट ड्यू टू, जो बिड कर रहे हैं वो क्यों लूज कर जाते हैं? बिड प्रीमियम्स टू हाई, बिड कॉस्ट टू हाई, पोटेंशियल सिनर्जी आइदर नॉट परसूड और नॉट ग्रेट इनफ टू कवर कॉस्ट. एंड मर्जर एक्टिविटी ऑफन अंडरटेक फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजर्स, फॉर एग्जाम्पल एम्पायर बिल्डिंग, rather than to increase the wealth of shareholders. तो इसमें जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो जिनकी वेल्थ यूज की जा रही है, वो अक्सर लूज भी कर सकते हैं या विन भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट दीज आर द फैक्ट्स विच इज कंसीडर्ड इन मर्जर और एक्विजिशन. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग अ मर्जर? क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं? द मेन ऑप्शंस अवेलेबल क्या है उसमें? कैश, या तो आपके पास सरप्लस कैश हो, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स हो, उससे आप पे करके कैश में परचेज कर लें कंपनी को. नंबर 2 ऑर्डिनरी शेयर्स, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने शेयर्स को फ्लोट करें मार्केट में, वहां से फंड्स कलेक्ट करें और उन फंड से आप मर्ज कर लें या एक्वायर कर लें कंपनी को. नंबर 3 लोन स्टॉक, या तो ये है कि आप लोन को ऑब्टेन करें किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और उससे कंपनी को मर्ज कर लें या फिर एक्वायर कर लें. और आखिरी सिचुएशन है हाइब्रिड स्कीम. हाइब्रिड स्कीम में क्या आएगा? सच एज कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, यानी आप ऐसे लोन स्टॉक को रेज करें जो कि बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हाइब्रिड स्कीम कहलाती है. कॉमनली मिक्सचर ऑफ दिस इज ऑफर्ड, कि कंपनी कुछ लोन लेके फंड करती है, कुछ इक्विटी लेके फंड करती है और कुछ अपने कैश में से इन्वेस्ट करती है. एडवांटेजेस इसमें क्या है? एडवांटेज टू बिडर, जो बिड करने वाला है, जो ऑफर करने वाला है, उसके लिए क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है? प्राइस सर्टेन, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, और विक्टिम के लिए क्या है जिसको परचेज किया जा रहा है? प्राइस सर्टेन, कैपिटल गेन्स टैक्स, यानी उसे अपनी जो भी बेनिफिट होगा उसके शेयर्स को परचेज किया जाएगा तो उस पर कैपिटल टैक्स आपको पे करना होगा. ऑर्डिनरी शेयर्स में बिडर के लिए क्या बेनिफिट है कि इट सेव्स कैश, यानी आपका जो अपना फंड्स है अवेलेबल है वो सेव हो जाते हैं और आप नए फंड्स को ऑब्टेन कर लेते हैं थ्रू इश्यूएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स और आप उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. एंड इट वैल्यूज अनसर्टेन डायल्यूशन ऑफ ईपीएस, क्योंकि आप जो नए शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसके वजह से आपका करंट अर्निंग पर शेयर है वो डिक्रीज हो जाता है, डायलूट हो जाता है. एडवांटेज विक्टिम के लिए क्या है? नो कैपिटल गेन टैक्स, मेंटेन्स ओनरशिप स्टेट वैल्यू अनसर्टेन, यानी अगर आप शेयर्स आपको मिल रहे हैं विक्टिम को तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स आप बच जाते हैं और आपके पास एक नया स्टॉक आ जाता है. अगर लोन स्टॉक लिया जाए तो बिडर के लिए क्या फायदा उसमें? इट सेव्स कैश रीजनेबली सर्टेन वैल्यू, यानी आपका जो कैश है इससे भी सेव हो जाएगा और लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दैट इट विल इंक्रीज गियरिंग. और विक्टिम के लिए क्या है? नो कैपिटल गेन्स टैक्स, रीजनेबली
certain value changes character of investment, no longer owners. क्योंकि अगर लोन स्टॉक से आपको विक्टिम को पेमेंट की जा रही है तो उसके बाद आपकी ओनरशिप खत्म हो जाएगी. अगर ओनर शेयर्स आपको मिल रहे हैं तो इट मीन्स कि आपको ओनरशिप कुछ मिल रही है कंपनी में, नई कंपनी में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ सेव हो जाएगी. लेकिन लोन स्टॉक से उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो विक्टिम नई जो कंपनी मर्ज हो रही है, एक्वायर हो रही है, तो उसमें वो ओनरशिप नहीं उसकी नहीं रहेगी और खत्म हो जाएगी. जो लास्ट ऑप्शन हमने फाइनेंसिंग मेथड डिस्कस किया था डेट इज कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, और उसमें एडवांटेजेस क्या है बिडर के लिए कि इट सेव्स कैश, इट इंक्रीजेस गियरिंग अनसर्टेनिटी एज टू इवेंचुअल आउटकम, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फॉर विक्टिम क्या है, नो कैपिटल गेन्स टैक्स, चेंजेस कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी उसमें भी जो मेन फायदा है कि देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स, बट ऑप्शन टू रिमेन इक्विटी ओनर्स, क्योंकि उनके पास लोन स्टॉक आ गया. लोन स्टॉक से वो बाद में कंपनी के ओनर्स बन सकते हैं जब वो कन्वर्ट करवा लेंगे अपने लोन स्टॉक को इनटू इक्विटी. तो दीज आर द मेथड्स टू फाइनेंस मर्जर और एक्विजिशंस और उसके रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स इन मर्जर एक्विजिशन. स्ट्रेटजी में आपके पास कुछ बुलेट फॉर्म में आइटम्स आ रहे हैं कि स्ट्रेटजी आपको किस तरह डेवलप करनी होगी. आइडेंटिफाई लाइकली टारगेट, अप्रोच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन कॉन्फिडेंस टू गेज रिएक्शन, डिटरमिन प्राइस टू ऑफर, कि आपने प्राइस खुद डिटरमिन करनी है कि कितनी, जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तो आपने कितनी प्राइस कोट करनी है. और डिटरमिन टर्म्स ऑफ द ऑफर, कि इसकी टर्म्स क्या होंगी, टैक्टिक्स क्या होंगे मर्जर के, और पॉसिबल टैक्टिक्स क्या हो सकते हैं, डाउन रेट और ऑफर विया द सीटी कोड. एक टर्मिनोलॉजी है पाकिस्तान में जो कंपनी लॉ नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है टू रेगुलेट मर्जर एक्विजिशंस. कंपनी लॉ में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस निकाले हुए हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे मर्जर और एक्विजिशंस को. डाउन रेट में क्या होते हैं, बिडर्स बाय शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट. Once 30% of the shares obtained, formal offer must be made to the other shareholders. तो डाउन रेट में ये होता है कि आप जो कंपनी एक्वायर करना चाह रहे हैं इन्वेस्टर, वो ओपन मार्केट में जाएगा, उसके शेयर्स को परचेज करता जाएगा, और जब वो एक सर्टेन अमाउंट तक परचेज कर लेगा शेयर्स को, तो फिर वो कंपनी को या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जाके बात करेगा कि आई एम द ओनर और अब मैं चाहता हूं कि मैं बाकी शेयर्स को भी परचेज कर लूं. सिटी कोड जो कि नॉर्मली लॉ और रेगुलेशंस के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है और उसको सेफ गार्ड किया जाता है सबके इंटरेस्ट को. तो मर्जर और एक्विजिशंस में क्या और लॉज और रेगुलेशंस हो सकते हैं, तो इसका पर्पस पहले डिस्कस कर लेते हैं. द सिटी कोड इज एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस ऑल्दो with no statutory backing. The general approach to an offer under the city code is bidders put offer to the board of the victim. As soon as the firm offer is made, shareholders must be informed by the press notice. ये पूरा प्रोसेस है जो कि पाकिस्तान में भी नॉर्मली एक्विजिशन के वक्त कुछ रेगुलेशंस हैं कि वो आप इस प्रोसेस में चलेंगे. अगर ऑफर होती है तो उसको अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आप पब्लिश भी करेंगे इसको न्यूज़पेपर में. An announced offer cannot be withdrawn. Directors must act in the interest of the shareholders. All documentation must be prepared with the same care as if they were as a prospectus being prepared under the Companies Act. Shareholders must be informed of all relevant facts. Once 30% of the shares acquired, an offer must be made to the remaining shareholders. This offer must include a cash alternative. So these are the total process in accordance with the law or regulation. और उससे पहले हमने डाउन रेट को डिस्कस किया था जिसमें आप ओपन मार्केट से परचेज करके फिर ऑफर करते हैं. और सिटी कोड में या एज पर लॉ रेगुलेशन ये है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफर करेंगे, पब्लिश होगी, तमाम को चीज़ों को वैल्यूएट किया जाएगा और उसके बाद वंस द ऑफर एक्सेप्टेड तो उससे आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते. तो दीज आर द प्रोसीजर्स. अभी डिफरेंसेस
क्या हो सकते हैं अगेंस्ट अ बिड? अगर किसी ने कंपनी ए ने कंपनी बी को बिड दी है कि मैं एक्वायर करने कंपनी बी को, तो उसके डिफेंसिव टैक्टिक्स क्या हो सकते हैं? हॉस्टाइल बिड्स, इन सम instances a merger will be agreed by both boards and the victim company directors will recommend the shareholder to accept the offer. ऐसी सिचुएशन में बोर्ड ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो शेयर होल्डर्स को वो एग्री करवा लेते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लें और अपने शेयर्स को सेल कर दें. However, in many instances the bid will not be accepted initially normally either because the directors fear for their own future or because they are holding आउट फॉर अ हायर प्राइस. तो या तो ये ऑप्शन हो सकती है कि वो फॉरन एक्सेप्ट कर लें, उनके पास ऑफर लेके जाएं तो वो एक्सेप्ट कर लें. सेकंड क्या हो सकता है कि जो कंपनी बी है जिसको ऑफर दी जा रही है वो एक्सेप्ट ना करें. उसके क्या रीजन हो सकते हैं? या तो वो खुद रन करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को, और सेकेंडली वो हायर प्राइस चाहते हैं कि उन्हें ऑफर की जाए. डिफेंसेस क्या हो सकते हैं? बिफोर अ बिड इज मेड, if a company wishes to avoid the attention of a bidder, there are a number of actions. क्या हो सकते हैं उसमें? रीवैल्यू फिक्स एसेट, आप फिक्स एसेट को रीवैल्यू करवा लें, आपके पास ये रीवैल्यूएशन गेन आ जाएगा, उससे आपकी बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हो जाएगी, बहुत उसमें मेजर गेन्स आ जाएंगे और वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी. और जो कंपनी ऑफर देना चाह रही है वो बैकफुट पे आ जाएगी कि इतनी हाई प्राइस, द कंपनी में नॉट बी इन अ पोजीशन टू पे सच अ हाई प्राइस. और या फिर ये है कि इशू बोनस शेयर्स टू इंक्रीज शेयर्स इन इशू, डिस्पोज ऑफ सरप्लस एसेट्स, इंश्योर डायनामिक एफिशिएंट मैनेजमेंट. तो ये वो तमाम प्रोसेसेस हैं, तमाम चीजें जिसमें कंपनी अपने आप को सेफ रख सकती है आफ्टर कि अगर बिड आपको ये लग रहा है कि आपको एक बिड रिसीव होने वाली है, आपकी कंपनी की वैल्यू लगने वाली है, तो आप ये टैक्टिक्स अपना के अपने आप को बिड से सेफ रख सकते हैं. या फिर इंक्रीज डिविडेंड्स, मिनिमाइज कैश होल्डिंग्स, होल्ड स्ट्रेटेजिक क्रॉस शेयर होल्डिंग्स, या फिर पॉइजन पिल्स जो कि बहुत मेन टर्मिनोलॉजी है, नॉर्मली यूज होती है. बिल्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल come into force when the business is taken over. The contract will have a detrimental effect on the business and thus will discourage predators. For example, debenture that become instantly redeemable upon takeover. तो या तो पॉइजन पिल भी एक टैक्टिस है कि आप जो बिडर है उसके लिए ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स अपने बिजनेस में लेके आए कि जो ऑफर करने वाला है वो खुद बैकफुट पे आ जाए, वो अपनी ऑफर को खुद खत्म कर दें. गोल्डन पैराशूट्स, really a type of poison pill. The directors have the right to leave with substantial payouts if the business is taken over. तो ये भी है कि जब अगर कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने लिए गोल्डन हैंडशेक और इस तरह की स्कीम्स लेके आएंगे कि अगर वो उन्हें निकाला जाता है तो फिर उन्हें बहुत मेजर अमाउंट्स पे करनी होंगी. क्राउन ज्यूल्स, sell off assets that might make the company attractive to predators. तो ये वो तमाम टैक्टिक्स हैं जिससे आप अपनी कंपनी को की अट्रैक्टिवनेस फॉर ए बिडर खत्म कर सकते हैं. तो these are the defensive tactics before a bid is made. Now we will discuss defenses after a bid is made. कि आपको बिड मिल चुकी है तो now what are the options available for the victim? If the bid is initially rejected, the following defenses are common. That the terms of the offer are unacceptable, there is no logic synergy to the merger, urge that victim shares are undervalued and bidders overvalued, disclosing favorable information about the future which makes the bid looks unacceptable. ये वो तमाम टैक्टिक्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं. Appealing to the loyalty of the shareholders, seeking a bid from a friendly third party, a white knight, claiming that a bid is contrary to the city code, appealing to the competition commission that a bid is against policy, or Pacman defense, bid for the predator. तो ये तो वो तमाम टैक्टिक्स हैं. अगर आपको बिड रिसीव हो चुकी है, आपको ऑफर लग चुकी है कंपनी की, तो फिर आप ये टैक्टिक्स अपना के उसको
अनअट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी कंपनी को फॉर द बिडर। या उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैकमैन डिफेंस कि आप अगर किसी कंपनी ने आपको ऑफर दी है कि मैं आपकी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा हूँ, आप उल्टा ऑफर उसको कर देंगे कि मैं आपकी कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा हूँ इस प्राइस पे। और या तो ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेंगे कि तुम मुझे परचेज कर लो इस प्राइस पे। तो ये वो तमाम टैक्टिक्स हैं जो कि यूज होते हैं टू अवॉइड एक्विजिशन और मर्जर। नाउ पोस्ट मर्जर मॉनिटरिंग, कि आप मर्ज कर चुके हैं कंपनी के साथ, अभी उसको मॉनिटर कैसा करेंगे। मैनी मैनेजर्स fail and therefore if a merger acquisition is agreed it must be carefully monitored by management। इसका क्या मतलब कि काफी मैनेजमेंट फेल हो जाती है आफ्टर मर्जर, क्योंकि उसमें सिनर्जी इम्पैक्ट नहीं आते, मैनेजमेंट से एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती और जो प्रोसेस है पूरी बिजनेस फ्लो का वो टूट जाता है, या उसमें इतने हर्डल्स आ जाते हैं कि वो एक सिस्टमैटिक वे में फ्लो नहीं कर पाता। तो इसको बहुत मॉनिटरिंग चाहिए होती है आफ्टर मर्जर। द मोस्ट कॉमन रीजंस गिवन फॉर फेलियर ऑफ मर्जर्स आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, inefficient amalgamation of the two parties, insufficient appreciation of the problems of the merger, in particular personal problems, excessive concern with matters such as dominance of the board of directors, problems of determining value and terms of the offer, inaccurate assessment of future resource needs, incompatibility of system processes। ये वो तमाम कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका मर्जर या एक्विजिशन फेल हो जाता है, क्योंकि इनमें से एक एलिमेंट भी आ जाता है तो कंपनी को रन करना, उसके ऑपरेशंस को एक सिस्टमैटिक वे में फ्लो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट इज द विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन एंटिटी, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की एक एंटिटी में वो आप वापस निकाल लें, यानी सेल कर दें या उसको खत्म कर दें। अनबंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ incidental businesses in order to concentrate resources on the core business। यानी अगर एक कंपनी है उसके 4 सेगमेंट्स हैं और 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में वो फिर 4 सेगमेंट्स को ऑपरेट कर रही है, उसमें टॉयज बना रही है, उसमें कंप्यूटर का सामान बना रही है और उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बाकी सामान बना रही है, तो वो बाकी सेगमेंट्स को इग्नोर करके एक सेगमेंट पे कंसंट्रेट करना चाह रही है, तो बाकियों में अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देंगे, सेल ऑफ कर देंगे, या वो एसेट्स को इंडिविजुअली सेल आउट कर देंगे। तो अनबंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ इंसिडेंटल बिजनेसेस, यानी जो आपके साथ मेन बिजनेस के अलावा जो स्मॉल अमाउंट के और स्मॉल नेचर के बिजनेसेस हैं वो आप सेल ऑफ कर दें, to concentrate resources on the core business। A demerger is the opposite of a merger, splitting a group into 2 or more comparable independent units। जो तो demerger है that is opposite of merger। merger में 2 कंपनी आपस में मिक्स हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं और एज ए सिंगल एंटिटी ऑपरेट कर रही हैं। demerger में एक सिंगल एंटिटी अपनी कंपोनेंट्स को अलग करके अलग एंटिटीज की और अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटीज में उसको ऑपरेट करना चाह रही है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी डाइवेस्टमेंट की कि किस किस नेचर की हो सकती हैं, और उसमें रीजंस अभी डिस्कस कर लेते हैं। रीजंस में क्या है? लैक ऑफ फिटनेस, कि आप जो इन्वेस्टमेंट है वो क्वाइटली गुड नहीं है फॉर द इन्वेस्टर। नॉट अ कोर एक्टिविटी, आप किसी और बिजनेस पे कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, तो इस रीजन की बेस पे आप डाइवेस्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। अर्निंग इनएडिक्वेट रिटर्न, या फिर आपको कैश चाहिए और देयर इज टू हाई रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट, तो इन बेसिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट कर देते हैं। मैनेजमेंट बायआउट्स। अ मैनेजमेंट बायआउट इज वेयर अ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स acquire the effective control of an operation to form an independent business। यानी
एक कंपनी अपने आप को सेल करना चाह रही है, लेकिन कंपनी में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, दे एक्वायर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एन ऑपरेशन टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, यानी वो कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ एन मैनेजमेंट बाय आउट आर यूजुअली मैनेजर्स कैन ओनली प्रोवाइड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइस रिक्वायर्ड, देयरफॉर स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस विल प्रोवाइड मच ऑफ द फाइनेंस। पहली सिचुएशन में क्या आ रहा है आपके पास कि जो मैनेजर्स हैं नॉर्मली उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो पूरी की पूरी कंपनी को एक्वायर कर सकें, कैश पे कर सकें और उसको खरीद सकें। तो वो क्या करते हैं, वो एज ए स्पेशलिस्ट बन के उस कंपनी में एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी अमाउंट वो पे कर दें। तो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे कर देता है और वो कुछ अमाउंट पे करके अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं। यूजुअली मैनेजर्स कैन ओनली प्रोवाइड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्राइस and therefore specialist institutions will provide much of the finance. Most institution finance is in the form of loans and many management buyouts are highly geared, क्योंकि normally managers के बाद इतनी investment नहीं होती कि वो पूरी कंपनी को परचेज कर सकें, तो उसके लिए वो या तो लोन ले लेते हैं। And most institutions will require board representation, कि अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है यानी कोई मैनेजमेंट बाय आउट में आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है मैनेजर्स के साथ, तो उसमें वो क्या चाहेगा कि उसे बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। मैनेजमेंट मस्ट हैव वेल प्रिपेयर्ड बिजनेस प्लान्स इंक्लूडिंग फ्यूचर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड इन पर्टिकुलर एग्जिट रूट्स फॉर द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, दैट इज प्लान्स फॉर इवेंचुअल लिस्टिंग। यानी ये जो हम चौथा पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें जब मैनेजमेंट बाय आउट हो जाता है और जो करंट मैनेजर्स हैं वो बिजनेस को रन करना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास ग्रेट प्लान और एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम प्लान होना चाहिए कि वो आगे जाके इस बिजनेस को किस तरह रन करेंगे और जिनसे उन्होंने फाइनेंसिंग ली हुई है उसको किस तरह वो रिड्यूस करेंगे, उसको किस तरह वो रीपे करेंगे। यूज ऑफ मेज़ानिन फाइनेंस, दिस इज फाइनेंस दैट फॉल्स बिटवीन सीनियर डेट एंड इक्विटी, usually has little or no asset backing but carries high floating rate interest and potential for eventual equity participation. तो ये mezzanine फाइनेंस में आपकी इक्विटी का पोर्शन बहुत कम होता है और लोन का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है और एट द एंड जो आपका लोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन इक्विटी। तो ये मैनेजमेंट बाय आउट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की। अभी उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस इंक्लूड ऑफन सेफर देन स्टार्टिंग अप ऑपरेटिंग फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि मैनेजर्स करंट बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे, दे नो हाउ टू रन द बिजनेस और उसकी पॉलिसी प्रोसीजर्स और उसके कस्टम से वो दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। तो इट इज ऑफन सेफर देन स्टार्टिंग अप अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। मैनेजमेंट टीम, नो बिजनेस एम्प्लॉयज एटसेट्रा, fewer agency problems as owners and managers are the same parties, क्योंकि जब मैनेजर खुद रन कर रहे हैं दे आर themselves owners, तो उन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना होगा। पॉसिबिलिटीज फॉर कॉस्ट कटिंग ड्यू टू मैनेजमेंट प्लान्स टू रियलाइज फुल पोटेंशियल। और डिसएडवांटेजेस उसमें क्या है, पर्सनल रिस्क टेकन ऑन बाय द मैनेजर्स, क्योंकि वो इतनी मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेजर डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें पर्सनल रिस्क आ जाता है। Loss of head office support, success dependent upon quality of management team, price paid might be pushed up by external bidding, usually highly geared with inherent financial risk. So these are the advantages of management buyouts. Management buy-in को देख लेते हैं कि ये इसका क्या मतलब होता है। दिस इज वेयर बिजनेस इज एक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल ग्रुप ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट बाय आउट में एग्जिस्टिंग मैनेजर्स खरीद देते कंपनी को और मैनेजमेंट बाय इन में यानी एक ऐसे मैनेजर खरीदते हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, जो कि कंपनी का पार्ट नहीं है, वो किसी और कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं और वो इस कंपनी को खरीद के एज ए मैनेजमेंट बाय इन करके उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो दिस इज मैनेजमेंट बाय इन।
नाउ वी विल डिस्कस कैपिटल रिकंस्ट्रक्शंस। इसका डिस्कस कर लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या होता है। एन एंटरप्राइज इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मे बी कैश फ्लो प्रॉब्लम्स व्हिच हैव culminated in the banks asking for a plan whereby the enterprise overdraft might be repaid. Often the enterprise balance sheet will be characterized by debit balance on the retained earnings, low NAPs, net assets per share. A scheme is suggested by directors or maybe another stakeholder. Under the scheme, the balance sheet is restructured. Typically, the scheme involves an injection of cash, a reorganization of the capital of the enterprise, revaluation of assets. So these are the background due to which capital is reconstructed by the company. कि कंपनी क्यों अपने कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करती है और उस पर कंसिडरेशन प्लेस करती है फॉर रिकंस्ट्रक्शन। एक रीजन हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है कंपनी पे, उसकी इक्विटी नेगेटिव हो गई है और उसके नेट एसेट्स नेट लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो गए और उसमें बैंक्स का प्रेशर है और बाकी उसके शेयर होल्डर्स का प्रेशर है। तो इस वजह से वो कंपनी क्या चाहती है कि वो अपने कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट कर ले ताकि वो एक फ्लो में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सके। उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? आइदर डायरेक्टर्स इंजेक्ट कैश उसमें इंजेक्ट करें यानी सपोर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ कैश, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ एंटरप्राइज यानी लोन्स लें, लोन्स को रिस्केड्यूल करवाएं और उसको रीऑर्गेनाइज करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, या फिर रीवैल्यू ऑफ एसेट्स यानी रीवैल्यूएशन करेंगे तो उनकी बैलेंस शीट पोजीशन बेहतर हो जाएगी क्योंकि वहां पे जितना भी रीवैल्यूएशन गेन आएगा वो बैलेंस शीट में आके रिफ्लेक्ट होगा। A capital reconstruction is occur when a company has experienced financial difficulties which have weakened its balance sheet and drained its resources. The company may have good prospects in the future but is unable to exploit the opportunities available because of lack of cash. Shareholders may be unwilling to invest because there is debit balance on the retained earnings. It means there is negative retained earnings. And the debt of the company may be inefficient. For example, the company may be using expensive overdraft facilities. तो ये और हमने कुछ उसमें रीजंस डिस्कस किए कि व्हाई कंपनी स्टार्टेड रिकंस्ट्रक्टिंग इट्स कैपिटल। तो ये हो तमाम रीजंस है जिसकी वजह से कंपनी अपने कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करने का सोचती है और इसके इम्पैक्ट नॉर्मली पॉजिटिव होते हैं कंपनी के लिए और सेटिस्फेक्शन हो जाती है थर्ड पार्टीज को, उसके सप्लायर्स को, उसके डेटर्स को, उसके क्रेडिटर्स को, बैंक्स को कि कंपनी की सिचुएशन बेहतर हो गई है और वो बेहतर ऑपरेट कर लेगी इन फ्यूचर। इसमें फॉर्मुलेटिंग स्कीम डिस्कस कर लेते हैं। मेथड क्या हो सकते हैं? राइट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंसेस, राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, फॉर एग्जांपल गुडविल, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, रीवैल्यू अदर एसेट्स, reorganize capital structure, raise new capital, use capital reorganization account of all for all double entry. So these are the methods available for capital reconstruction कि आप अपने जो एक्स्ट्रा आइटम्स आ रहे हैं उनको राइट ऑफ करें, फिक्टिशियस एसेट्स हैं उनको राइट ऑफ कर दें, वो ख़त्म कर दें, रीवैल्यू करा लें अपनी एसेट्स को और कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करें। बैंक अगर लोन लिया हुआ है तो बैंक के साथ नेगोशिएशन करके उनको रिस्ट्रक्चर करवाएं, उनकी पेमेंट टर्म्स को डेफर करके कराया जा सकता है या फिर आप नया कैपिटल रेज कर दें और यूज कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन अकाउंट फॉर ऑल डबल एंट्री। Who are the suppliers of capital? In formulating a scheme, consider the interest of the various suppliers of capital. कि जब आप स्कीम को एक फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी मद्देनजर रखने होंगे कि किस तरह आप उनके सप्लायर ऑफ कैपिटल के इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। Secured creditors have power to apply for the company to be wound up. Therefore, they should be given incentives not to do so, such as the offer of free equity or increased coupon rate. जब आप कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करवाने चाह रहे हैं तो जो आपके सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनकी पावर ज़्यादा है, जो कि हम प्रीवियस
लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे कि सिक्योर्ड क्रेडिटर की या डिबेंचर होल्डर्स की पावर है, वो कोर्ट में जा सकते हैं, कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप और फॉर रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज। तो आपको उनके इंटरेस्ट को सेफ रखना होगा व्हेन यू आर गोइंग फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मे हैव टू फोरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ हायर कूपन रेट इन फ्यूचर, क्योंकि क्रेडिटर्स के बाद जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके डिविडेंड कंपनी को मस्ट पे करना होता है, दैट इज द लायबिलिटी फॉर द कंपनी। और कंपनी अगर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन जब जा रही है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उस वक्त कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि वो पहले कंपनी उनका डिविडेंड दे और फिर कैपिटल को रिकंस्ट्रक्ट करे। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी कि उनके लिए हायर कूपन रेट प्रॉमिस करेगी इन द फ्यूचर। And only shareholder have most to lose in liquidation, therefore it will not normally be necessary to be too generous to them in the organization, क्योंकि नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का इतना इन्फ्लुएंस कंपनी पे नहीं होता, उनके पास इतने राइट्स और उनके ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो फिर उनको आप इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर सकते हैं फॉर कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन पर्पसेस। इस तमाम टॉपिक्स में मर्जर एक्विजिशन में हमारा फोकस किया था और हमने क्या लर्न किया है, वी हैव डिस्कस्ड अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, we have discussed the arguments for and against mergers, matter of financing mergers, strategies and tactics of mergers, and defense against mergers. We have also discussed divestment of business, and we have discussed management buyouts and how to deal with capital reconstruction. So this is all about mergers and acquisitions. Now we will discuss another important topic, venture capital, क्योंकि ये भी नॉर्मली प्रैक्टिकल आप देखने में आ सकते हैं आपके, और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। द की एरियाज टू बी अवेयर ऑफ इन वेंचर कैपिटल डील्स ऑफ विच मैनेजमेंट बाय आउट्स आर वन फ्रॉम और द फॉलोइंग: preparation of a business plan for venture capital, assessing whether a deal is worthwhile, preparing a deal, setting up an appropriate capital structure, establishing an appropriate exit route. Establishing an appropriate exit route. तो ये कि वेंचर कैपिटल का एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के थ्रू कंपनी वेंचर कैपिटल करती है। तो वेंचर कैपिटल में कंपनी नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रही होती है जिसमें उसने प्रीवियसली काम नहीं किया होता, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले आप बिजनेस प्लान बनाएंगे अपना और उसकी वर्थवाइल उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी ये चेक करेंगे अदर इट इज फिजिबल और नॉट, और उसके लिए प्राइसिंग की कैलकुलेशन करेंगे, अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करेंगे, और उसके साथ साथ आपके पास एग्जैक्ट रूट भी होने चाहिए कि इन केस वेंचर कैपिटल सक्सेसफुल नहीं होता तो व्हाट आर द एग्जैक्ट रूट्स available for the investor. A venture capitalist is typically someone who invests in a risk business to assist an entrepreneur with financial and business acumen. The reward for this is the potential to earn a large capital gain in the medium to long term. तो जैसे कि हमने बात की कि वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टर के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता और ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि जिसमें रिस्क इन्वेस्टर के लिए ज्यादा होता है। तो वो ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि ही इज एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न्स। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल रेंजिंग फ्रॉम वेरी रिस्की सीड कैपिटल वेयर अ बिजनेस हैज ओनली जस्ट स्टार्टेड एंड एम्स टू डेवलप एन आइडिया इनटू अ सेलेबल प्रोडक्ट, to management buyouts where the business is already well established and generating good cash flows. तो वेंचर कैपिटल में डिफरेंट फॉर्म्स आपसे डिस्कस की, उसमें सीड कैपिटल की फॉर्म में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीड कैपिटल का मतलब ये होता है कि इनिशियल कैपिटल जो इन्वेस्ट करना होगा और जहाँ पे कंपनी ने अभी जस्ट ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं और उन्होंने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बनाना है और उसको सक्सेसफुल करना है। या फिर मैनेजमेंट बायआउट्स भी हो सकते हैं जिसमें
रनिंग कंपनी को मैनेजमेंट परचेज करना चाह रही है, तो वो एक नया एक्सपीरियंस करना चाह रही है। Characteristic है, venture capital investment is a very risky as evidenced by large number of companies which fail. As such, it is not viewed as an attractive lending option by traditional bankers for a number of reasons. तो normally जो lenders हैं ऐसे प्रोजेक्ट में के लिए लोन नहीं देते, क्यों? There is little asset backing, person guarantees of varying worth, since the directors will already have invested much of their personal wealth in the business. Little trading history, little evidence of management ability in the company, inability of the bank manager to assess equity style investment. So these are the reasons why the bankers avoid to finance such project. As a result, equity finance from investors who are used to dealing with risk and assessing the viability of investment from such a viewpoint is necessary. तो जब आपका बैंकर आपको रिफ्यूज कर देगा तो देयर इज एन इक्विटी फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टर। Hands-on management. The venture capitalists will often have financial and organizational skills which will be of value to the company. In addition, the entrepreneur will have given up a sizable stake of his company to the investor and may expect something more in return than just the initial cash finance. Active management participation and a seat on the board for the venture capitalists will often be attractive to both sides. The risk of this is that the entrepreneur may feel that his company is being taken over and resent the institution represented by the venture capitalist. It is therefore important to establish the expectation of each side upfront and ensure that they are compatible. तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उसको अपने आप को सेफ गार्ड करना होता है, अपने इंटरेस्ट को सेव करना होता है इन्वेस्टर को, तो उसके लिए ये आपके पास पॉसिबल वेज हैं. द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल टू ऑर्गेनाइजेशन. 3i PLC, for example, typically adopts a fairly hands-off approach and will only seek non-executive seat on the board. तो ये वो तरीके थे टू रन अ वेंचर कैपिटल बिजनेस. कैपिटल गेन्स. A young company is unlikely to have significant cash surpluses for distribution to investors. Any cash generated is likely to be reinvested in the business to achieve growth or to pay off debt. तो ये वो यानी जब वेंचर कैपिटल आप चला रहे हैं तो उसमें जितने भी आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो नॉर्मली कंपनी क्या करेगी, री इन्वेस्ट कर लेगी अपने ऑपरेशंस में टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. दिस मीन्स दैट अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विल नीड टू अचीव मोस्ट ऑफ हिज रिटर्न थ्रू दो सेलिंग हिज इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर एंड अचीविंग अ हाई कैपिटल गेन. क्योंकि जब वो री इन्वेस्ट होते जाएंगे तो फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट को अपना कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं. Only a small part of the overall return will be in the form of running yield through a preference dividend, for example. तो इस तरह इन कैपिटल जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है वो अर्न कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न. What are the exit routes for the venture capitalist? Given the investor's need for capital gain, a feasible exit route is vital from the very start. The exit is likely to be either a flotation or trade sale to another company or a restructuring whereby the investor shares are repurchased by the company. The most likely of this is a trade sale, since the many companies will not be sufficiently large to be floated or may be unsuitable for flotation for some other reason. A share repurchase scheme may not realize a realistic sum unless the company gears up to an unacceptable extent. So this is the exit route available for investor who invested in venture investment. Now, what are the required rates of return? In order to compensate for the high risk levels, the required return on the investment will need to be substantial. The actual return required will vary from investment
to an investment, but a compound annual return of around 30 to 35% would not be unusual. क्योंकि जब एक इन्वेस्टर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो वो उस पर रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, डिमांड करेगा, और ऐसी इन्वेस्टमेंट से नॉर्मली इन्वेस्टर 30 to 35% रिटर्न भी ऑब्टेन कर रहा होता है, एंड दैट इज़ नॉट अनयूजुअल इन सच टाइप ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे हम आज का अपना टॉपिक क्लोज करते हैं. जो आज के दिन में हमने चूजिंग ए डिस्काउंट रेट से शुरू किया था, जो कि हमने कंटिन्यू किया था फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर, और फिर उसके बाद मर्जर और एक्विजिशन की हमने बैकग्राउंड, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसके प्रोसेसेस को समझा. क्योंकि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस तो आपने करना सीख लिया है, लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज का, इस प्रोसेस का आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस होने वाला है जिसमें मर्जर एक्विजिशन की बात हो रही है, तो आपको उसके प्रोसेसेस और उसकी टर्मिनोलॉजीज का अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. उसके बाद हमने वेंचर कैपिटल को भी डिस्कस कर लिया. वेंचर कैपिटल की भी कैलकुलेशन तो उसी तरह होगी जिस तरह इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की होती है, लेकिन उसमें हमने यहाँ पे उसके इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, टॉपिक्स को डिस्कस किया है. तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी. सो थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.